Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually deduced the concept that's equation of a plane in 1 point form and equation of a plane in 3 point form. The 1 point form of equation of plane in vector form was r vector minus a vector dot n vector is equal to 0. Equation of a plane, vector equation of a plane which is passing through a point and parallel to a given vector. Well, r vector is the position vector of any point lying on the plane. A vector is the position vector of that point through which the plane passes, and n vector is normal to the plane or perpendicular to the plane. So इसकी जब हमने कार्टेशियन इक्वेशन डिड्यूस की थी तो वो आई थी एक्चुअली a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन plus c into z minus z1 is equal to 0. While AB, capital A, capital B and capital C are the direction ratios of normal to the plane, or we can say that attitude numbers of the plane. This x, y and z are the coordinates of any point lying on the plane, and x1, y1, z1 are the coordinates of given point through which the plane passes. और हमने डिस्कस किया था 3 point form of equation of plane. A plane which is passing through 3 given points has this equation as determinant of x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1 is equal to 0. So this was actually the Cartesian equation of that plane which is passing through 3 given points x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3. Now इसी के बेस पे हमारा एक और टॉपिक रहेगा and that's called the condition for coplanarity of 4 points. 4 पॉइंट्स जो हैं कोप्लेनर कब होंगे, यानी 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन में कब लाई करेंगे. तो जिगर अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, दिस इज एक्चुअली द 3 point form of equation of plane, means equation of that plane which is passing through 3 given points, or equation of that plane which contains 3 given points. जब इस इक्वेशन में 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो ये एक प्लेन है, इसी प्लेन में एक चौथा पॉइंट x4, y4, z4 तब लाई करेगा अगर वो पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. यानी अगर वो पॉइंट, अगर हम उस पॉइंट में x4 यानी x के बदले x4 ले लेंगे, y के बदले y4 ले लेंगे, z के बदले z4 ले लेंगे, फिर अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ दैट थिंग 0 के बराबर आ रहा है तो वो 4 पॉइंट्स x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 और x4, y4, z4 must lie in the same plane, and at that time when they are lying in the same plane means they must be coplanar. तो क्या कंडीशन रहेगी फिर, क्या कंडीशन रहेगी फिर कि 4 पॉइंट्स होंगे कोप्लेनर. अगर ये 3 पॉइंट्स तो ऑलरेडी x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 ऑलरेडी यहां पे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन की इक्वेशन है जो 3 फिक्स्ड पॉइंट्स में से पास हो रहा है या जिसमें 3 फिक्स्ड पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. तो इसमें अब चौथा पॉइंट तब लाई करेगा जब वो चौथा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो सबसे पहले हम यहां पे मेंशन कर देंगे द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, the equation of a plane passing through, the equation of a plane passing through or containing 3 points, the equation of a plane passing through 3 points is, yes, determinant of x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0. This would be the equation of that plane which is passing through 3 given points or which contains 3 given points, right? Now इस प्लेन में एक चौथा पॉइंट तब लाई करेगा, यानी ये 4 पॉइंट्स फिर a, b, c and d of x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 and x4, y4, z4, they must be coplanar if the fourth point x4, y4, z4 lies in this plane, right? Therefore the points x1, y1, z1 first point, x2, y2, z2 second point,
x3 y3 z3 third point and fourth point that is x4 y4 z4 are coplanar. ये तब होंगे कोप्लेनर कब? if the point, कौन सा पॉइंट? जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x4 y4 z4 lies in the plane yes, determinant of, और इसे नाम रखेंगे यहां पे lies in the plane first if and only if the fourth point, because this is the equation of that plane which already contains 3 points. इसमें already 3 points हैं इस plane में. अब इस प्लेन में एक चौथा पॉइंट भी लाई करेगा अगर वो चौथा पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो वही हमने यहां पे लिखा, द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर इफ द फोर्थ पॉइंट दैट इज x4 y4 z4 lies in the plane first. that is if, अगर ये चौथा पॉइंट इस प्लेन में लाई करेगा तो इसका मतलब ये चौथा पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल x है उसके बदले x4, वेरिएबल y है उसके बदले y4, वेरिएबल z है उसके बदले z4. सो दैट इज इफ डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस x1 के बदले x4 माइनस x1, y माइनस y1 के बदले y4 माइनस y1, z माइनस के बदले z4 माइनस z1. बाकी यही x2 माइनस x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0. So you have to calculate the determinant of x4 minus x1, y4 minus y1, z4 minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1. If that determinant of that this matrix, or if that determinant it comes out to be 0, then the points, the 4 points x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 and x4 y4 z4 must lie in the same plane, means they must be coplanar. या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is if यहां पे हम इंटरचेंज करेंगे पहले क्योंकि ये x4 है, बाद में x2 है, बाद में x3 है, तो सबसे पहले हम x2 को लेके आएंगे. तो पहले रो फर्स्ट को इंटरचेंज करेंगे विथ रो सेकंड. फिर यहां पे आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. यहां पे आएगा x4 माइनस x1, y4 माइनस y1, z4 माइनस z1. फिर यहां पे आएगा x3, यहां पे x4 आएगा, यहां पे x3, फिर से इंटरचेंज कर देंगे. सो यहां पे दो इंटरचेंजेस हम साइमल्टेनियसली करेंगे. दैट इज first operating row 1 interchanged with row 2 and then row 2 with row 3. So सबसे पहले हम यहां पे मेंशन कर देंगे operate R1 interchanged with, interchange हम ऐसे लिखते हैं डिटरमिनेंट्स में. So operate R1 interchanged with R2 and then, और फिर उसके बाद क्या करोगे, and then R2 इंटरचेंज्ड विथ R3, और फिर आप R2 और R3 को इंटरचेंज करोगे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है. जब आप ये इंटरचेंज करोगे उसके बाद एक और इंटरचेंज करना है, दैट इज फिर R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करना है. तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ यस. अब पहले R2 को R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया. तो जब दो रोज या दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं by property third of the determinants, rather by property second of the determinants, which is called switching property, क्या कह रहा है, if any two rows or any two columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes in sign only, right? उसकी साइन चेंज हो जाती है. साइन चेंज मतलब माइनस से मल्टीपल होता है या -1 से मल्टीपल होता है. लेकिन अभी हमने दो बार इंटरचेंज कर दिया, तो दो बार -1 से मल्टीपल होगा, तो क्या बनेगा, इंप्लाइज ये बनेगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार -1 से मल्टीपल बाय स्विचिंग प्रॉपर्टी, फिर दो इंटरचेंज कर दी तो दो बार -1 से मल्टीपल, तो -1 स्क्वायर. अब डिटरमिनेंट क्या होगा, ये x2 माइनस x1 पहली रो में आएगा, सो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. इसी तरह यहां पे आएगा फिर x4, फिर हमने फिर से इंटरचेंज कर दी, रो थर्ड को रो सेकंड पे की प्लेस पे लेके आए, तो यहां पे बचेगा x3 माइनस x1, so x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, और लास्ट में फिर बचेगा x4 minus x1,
y4 minus y1, z4 minus z1 एंड दैट्स इक्वल टू 0। यहां पे आप रीजन भी लिख सकते हो बिकॉज बाय स्विचिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज बाय स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो हमने डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस कर रखा है कि व्हाट इज दैट स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी मीन्स इफ एनी टू रोज or any two columns of a determinant are switched, interchanged. If any two rows or any two columns of a determinant are interchanged or switched, then the value of determinant changes in sign only. तो ये था पॉजिटिव, फिर एक बार नेगेटिव से मल्टीपल कर दिया, लेकिन हमने दो इंटरचेंज कर दी तो दो बार -1 से मल्टीपल होगा, लेकिन -1 का स्क्वायर फिर से 1 ही आएगा एंड 1 इनटू द डिटर्मिनेंट, यही डिटर्मिनेंट बनेगा। दैट इज हमें फाइनल रिजल्ट जो क्या मिलेगा, दैट इज if determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, similarly x4 minus x1, y4 minus y1 and z4 minus z1 is equal to 0। सो जिगर अगर आपके पास 4 पॉइंट्स होंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और x4 y4 z4, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कोप्लेनर है यानी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आपने क्या करना है, यू हैव टू डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। आप x1 y1 z1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x2 y2 z2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x3 y3 z3, x4 y4 z4 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फिर ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे बाय लैप्लास एक्सपेंशन। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है तो पॉइंट्स मस्ट बी कोप्लेनर, और अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, बिकॉज डिटर्मिनेंट मस्ट बी अ स्केलर एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो अगर ये स्केलर 0 के बराबर आ रहा है सो पॉइंट्स मस्ट बी कोप्लेनर, और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो पॉइंट्स मस्ट नॉट बी कोप्लेनर, दे मस्ट नॉट लाई इन द सेम प्लेन। दिस वाज ऑल अबाउट the condition for coplanarity of 4 points. Now we are on the concept and that's called intercept form of equation of plane. We need to calculate another type of equation of a plane, but that is in the form of its intercept form. What are these intercepts actually? Intercepts are the directed lengths where the plane cuts the coordinate axes. So, जहां पे प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है, ओरिजिन से लेके उन पॉइंट्स तक की जो डिस्टेंस होगी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उन्हीं डायरेक्टेड लेंथ्स को हम यहां पे इंटरसेप्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन है, राइट, फिर अगर आपके पास एक लाइन है जो इस एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, सपोज ये पॉइंट ए है और सपोज ये पॉइंट बी है, तो ओरिजिन से लेके इस ए तक की जो डिस्टेंस रहेगी, लेंथ रहेगी, डायरेक्ट लेंथ ओ से लेके ए तक, इसी को कहेंगे, क्योंकि ये है अलोंग एक्स एक्सिस तो इसको कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ये भी इंटरसेप्ट है, ये भी इंटरसेप्ट है, बट दिस इंटरसेप्ट इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। एंड ये इंटरसेप्ट, ये डायरेक्टेड लेंथ जो है इट इज अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज व्हाई दिस वन इज टर्म्ड एज वाई इंटरसेप्ट। और अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन्हीं इंटरसेप्ट्स के फॉर्म में। तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन इंटरसेप्ट फॉर्म? तो सपोज वी हैव द 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस our x axis, y axis, positive y axis and positive z axis, ox, oy and oz. And suppose we have a plane and that plane intersects the coordinate axes at 3 different points. Suppose this is the plane pi and this plane pi cuts the 3 intercepts. ये plane pi origin में से पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये origin में से पास हो रहा है तब ये तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब आपके पास 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा लाइक दिस, एक्स एक्सिस,
यहाँ पे y एक्सिस और ये सपोज z एक्सिस, तो अगर एक प्लेन होगा दैट प्लेन मस्ट कट ऑल द थ्री एक्सिस, सो वो ओरिजिन में से पास नहीं होगा. सो लेट अस कंसिडर अ प्लेन पाई विच इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच कट्स और मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सपोज x एक्सिस को मीट कर रहा है पॉइंट A पे, y एक्सिस को मीट कर रहा है पॉइंट B पे और z एक्सिस को मीट कर रहा है पॉइंट C पे. सपोज ये इंटरसेप्ट O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे. O से लेके B तक की जो डिस्टेंस है उसको हम सपोज B से डिनोट करेंगे और O से लेके C तक की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल c से डिनोट करेंगे. राइट तो यहां पे सबसे पहले मेंशन कर देंगे, लेट अस कंसीडर अ प्लेन पाई not passing through the origin which meets the coordinate axes at points A, B and C respectively. So let us consider a plane. Let us consider a plane pi ब्रेसेस में नॉट पासिंग थ्रू द origin, जो पास में जो origin में से पास नहीं हो रहा है, नॉट पासिंग थ्रू द origin. Let us consider a plane pi not passing through the origin meets the coordinate axes x axis, y axis and z axis meets the coordinate axes at points, किन points पे meet कर रहा है, A, B and C respectively. यानी x एक्सिस को मीट कर रहा है पॉइंट A पे, y एक्सिस को मीट कर रहा है पॉइंट B पे और z एक्सिस को मीट कर रहा है पॉइंट C पे. तो सपोज हम लेट करेंगे, लेट OA स्मॉल a के बराबर है, OB स्मॉल b के बराबर, ये इंटरसेप्ट्स हैं. A is actually the intercept along x axis, B is actually the intercept along y axis and C is actually the intercept along z axis. सो यहां पे लेट कर देंगे, लेट ओ ए लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज ए, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट ओ बी इज बी एंड लेंथ ऑफ जेड इंटरसेप्ट ओ सी इज इक्वल टू स्मॉल सी. तो जिगर जब ओ से लेके इस पॉइंट ए तक की डिस्टेंस जो है वो ए है, तो मुझे फिर बता दो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. पॉइंट ए जो है दैट्स होली एंड सोली लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, a. लेकिन चूंकि ये होली एंड सोली x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा. सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a 0 0. सेम इज द केस विद पॉइंट b. पॉइंट b जो है दैट्स होली एंड सोली लाइंग ऑन y एक्सिस, तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट भी 0. सो x कोऑर्डिनेट इसका 0, y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट वैल्यू इसका क्या रहेगा, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट B तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल b, और z कोऑर्डिनेट 0 आएगा. इज इट क्लियर. सिमिलरली अगर पॉइंट C को देखेंगे, पॉइंट C z एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, z कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन से पॉइंट C तक की डिस्टेंस. तो ओरिजिन से पॉइंट C तक की डिस्टेंस स्मॉल c से हमने डिनोट कर दी. सो द पॉइंट्स A, the coordinates of the points A, B and C must be A 0 0, 0 B 0, 0 0 C. Therefore, the coordinates of points, therefore the coordinates of points, therefore the coordinates of points A, B and C, coordinates of points A, B and C are A of, yes, small a 0 0, b of 0 small b 0 and c of, yes, and c of 0 0 small c. Is that clear? These directed lengths OA, OB and OC are called intercepts cut off by the plane. तो यहां पे मेंशन कर देंगे directed lengths OA, OB and OC are called the
are called the intercepts, of the plane, या cut off by the plane, are called the intercepts of the plane or intercepts cut off by the plane. तो जिगर हमारे पास जो प्लेन है दैट्स पाई, और सपोज हम इसकी इक्वेशन को कंसिडर करेंगे इन जनरल फॉर्म, तो क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन? कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड प्लस कैपिटल डी इज इक्वल टू 0. लेट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, हम सपोज कर रहे हैं इस प्लेन की इक्वेशन जो है, लेट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, let the equation of this plane is, yes, ax plus by plus cz plus d is equal to 0. We will keep this equation as equation number first. तो जिगर हमारे पास ये प्लेन पाई जो है, इसकी इक्वेशन हमने ले ली ax plus by plus cz plus d is equal to 0. लेकिन इस प्लेन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है a, जिसके कोऑर्डिनेट्स a 0 0 हैं. इस प्लेन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है b, जिसके कोऑर्डिनेट 0 b 0 हैं. इस प्लेन पाई पे एक और पॉइंट c लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 c. तो मींस a पॉइंट भी इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, b पॉइंट भी इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और c पॉइंट भी इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब यहां पे x के बदले a, y के बदले 0, z के बदले 0. यहां पे x के बदले 0, y के बदले b, z के बदले 0, राइट? यहां instead of x we have 0, instead of y we have 0, and instead of z we have small c. So since the points a, b and c, since the points a of a 0 0, b of 0 b 0, and c of 0 0 c lies in the plane first, since the 3 points lies in the plane first, therefore they must satisfy the given equation, that is this ax plus by plus cz plus d is equal to 0. Therefore जब फर्स्ट पॉइंट a of a 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x के बदले जिगरा a आएगा, y के बदले b आएगा, ये y के बदले 0 आएगा, और z के बदले यहां पे फिर से 0 आएगा. तो therefore हमें क्या मिलेगा? a into x, that is a into small a, plus b into y, b into 0, plus c into z, c into 0, plus d is equal to 0. क्लियर? और जब दूसरा पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 b 0. तो x के बदले 0, इक्वेशन क्या बनेगी? a into 0 प्लस y के बदले b, सो b into b, प्लस z के बदले 0, सो c into 0 प्लस d must be equal to 0. एंड अब पॉइंट थर्ड अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां पे x के बदले 0, y के बदले 0, z के बदले c, तो क्या मिलेगा? एंड a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू z के बदले, ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है, तो c इंटू c प्लस कैपिटल D must be equal to 0, right? Because these 3 points are lying in the plane. When these 3 points are lying in the plane, this is point first, this is point second, this is point third. When these 3 points are lying in plane first, they must satisfy the equation of that plane. And here we have written the points. We have substituted the points in the given equation, that is equation first. तो देखते हैं यहां से क्या आ रहा है. हाँ जिगर, implies a plus 0 plus 0 plus d is equal to 0. तो मिलेगा a into small a plus d is equal to 0. और यहां से क्या मिलेगा? This is 0 b b. So capital B small b plus d must be equal to 0. And यहां से क्या मिलेगा? 0 plus 0 c c. So capital C into small c plus d must be equal to 0. Is that clear? So implies this can be further written as, यहां से a आएगा माइनस डी के बराबर, यहां से b आएगा फिर से माइनस डी के बराबर, और यहां पे
कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी आएगा माइनस डी के बराबर. इज दैट क्लियर? दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, यस, यहां से कैपिटल ए का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा माइनस डी डिवाइडेड बाई स्मॉल ए. यहां से कैपिटल बी का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा माइनस डी डिवाइडेड बाई बी. एंड यहां से कैपिटल सी का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा माइनस डी डिवाइडेड बाई स्मॉल सी. तो हमें मिला ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू. नाउ वी आर सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट. ये ए, बी और सी का वैल्यू, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी के वैल्यूज जो आ रहे हैं इन्हें सबस्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में. तो देखो जिगरा क्या आ रहा है यहां से. Substituting these values of capital A, capital B and capital C in equation first, we get, yes Jigar, what we get? Instead of A we have minus D by A, so minus D divided by A, yes, plus into X. So into X plus B के बदले minus D by B, so minus D divided by B into Y plus C into Z, capital C के बदले minus D by small c, so minus D divided by small c plus क्या आ रहा है D and that's equal to 0. Is that clear? So this further implies that देखो जिगर इस टर्म में भी माइनस डी, इस टर्म में भी माइनस डी, इस टर्म में भी माइनस डी, तो तीनों टर्म्स में हम माइनस डी को कॉमन लेके आएंगे. यहां पे क्या बचेगा x बाई ए, सो x बाई ए प्लस यहां पे y बाई बी, सो y डिवाइडेड बाई बी प्लस यहां पे डी जेड है यहां पे, तो d डिवाइड z डिवाइडेड बाई c. ये यहां पे प्लस डी है, उसको आरएचएस में ले लो तो क्या बनेगा, या d कॉमन लेके आओ तो d जब कॉमन आ रहा है तो यहां पे बचेगा -1 एंड दैट्स इक्वल टू 0. राइट? d इसमें भी, d इसमें भी, d इसमें भी, d इसमें भी, d को कॉमन लेके आए, लेकिन हम यहां पे माइनस डी को कॉमन ले रहे हैं. जब माइनस डी कॉमन आ रहा है बचा प्लस एक्स बाई ए, माइनस डी कॉमन आ रहा है प्लस वाई बाई बी, माइनस डी कॉमन आ रहा है प्लस जेड बाई सी, माइनस डी कॉमन आ रहा है तो बचेगा -1 एंड दैट्स इक्वल टू व्हाट 0, which further implies that ये माइनस डी यहां पे मल्टीपल है तो उस साइड में डिवाइड होगा एंड 0 डिवाइडेड बाय माइनस डी इज ऑब्वियसली इक्वल टू 0. तो इक्वेशन क्या बचेगी फिर, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b प्लस z डिवाइडेड बाय c, -1 को उस साइड में ले लो तो बनेगा is इक्वल टू +1. सो x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c is equal to 1, which is the required equation of the plane in intercept form, which is the required equation of the plane, equation of the given plane in intercept form. तो यही बनती है इस प्लेन की इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. राइट? तो क्या है जिगर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, where x, y and z are the variables coordinates of any point lying in the plane. A, b and c are the intercepts cut up by the plane along the coordinate axes respectively. That is, a is the intercept along x-axis, y is the intercept, b is the intercept along y-axis, and c is the small c it is, and small c is the intercept along z-axis, and that's equal to 1. Now means if it is given that a plane is cutting intercepts 2, 3 and 5 along the coordinate axes, एक plane आपके पास है जो प्लेन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट काट रहा है 2, 3 and 5, यानी 2 along x axis, 3 along y axis and 5 along z axis. Then what would be the equation of that plane? Directly we will find it as intercept form. That is, x divided by x intercept क्या है 2 is equal to y divided by y intercept क्या है 3 is equal to z divided by z intercept, that is 5. So x by 2 plus y by 3, sorry, x by 2 is equal to y by 3 is equal to, sorry, x by 2 plus y by 3 plus z by 5
is equal to 1 must be the equation of that plane which cut off intercept 2, 3 and 5 along the coordinate axes. So if a plane is cutting off the intercepts 2, 3 and 5 along the coordinate axes respectively, then its equation in intercept form must be x by 2 plus y by 3 plus z by 5, and that's equal to 1. So this was all about the condition for coplanarity of 4 points and all about the concept of equation of plane in intercept form or intercept form of equation of a plane, right? So that was all about the topic.